फ्लाविया ने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, हमने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया। पहले ट्रेडिशनल बिजनेस था, स्टेज भरा लाइफ था। अभी अपना काम करता हूँ अपने सपने के साथ। जय हो फ्लाविया। मैं चाइना पल, पहले मैं हाउसवाइफ थी। फ्लाविया ने मुझे आत्मनिर्भर बनाया। अभी मैं अपना बिजनेस চালাতে হয় এবং আমি যাতে নিজে ইনকাম পাই আর 10 জনকে ইনকাম করে দিই সেই রাস্তা তো দেখিয়েছেন। 10 জনকে ভালো রাখো আর নিজে ভালো থাকো। কেয়ার অ্যান্ড শেয়ার, রোজগার করো, রোজগারের মাধ্যমে মানুষের সেবা করো। সাধারণত মহিলার ক্ষেত্রে কাজ করে সংসার করে এই জিনিসগুলো করা খুব ডিফিকাল্ট ছিল। फ्लाविया के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, केमिकल फ्री और देश की मिट्टी से जुड़े हुए, हर समस्या का एक स्वदेशी समाधान। और इसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड आपका अपना बिजनेस। 0 इन्वेस्टमेंट से शुरू करें और अपना नेटवर्क बनाएं। हर सेल पर कमाएं बिना किसी लिमिट के। फ्लाविया सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक परिवार है, एक मिशन है। हर शहर, हर गांव में सफलता का एक नया रास्ता बन रहा है। आप भी इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। घर बैठे बिजनेस शुरू करें, अपनों के सपने पूरे करें, खुद पर भरोसा रखें। फ्लाविया है ना? जिंदगी बदलनी है तो रुकिए मत। आज ही जुड़िए फ्लाविया आयुर्वेदा से। नस नस भर दो जिंदगी उम्मीदों से जो भरी। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये जो अवार्ड फंक्शन है, ये अवार्ड को ग्रैब करने के लिए, लेने के लिए आप लोगों को जीत और मेहनत करनी पड़ी है। प्रोफाइल हम लोग अभी तक बना चुके हैं। सेकंड, द प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट क्वालिटी एक बार किसी को दिया, किसी को रेफर किया और दोबारा जो है उसका माइंड में ये प्रोडक्ट घूमते रहता है, ये प्रोडक्ट घूमते रहता है, क्योंकि क्वालिटी आपको सबसे ऊपर ले जा सकती है। वो प्रोडक्ट क्वालिटी हो, क्वालिटी पीपल, हम लोग का फ्लाविया। आप लोग ये जो क्वालिटी पीपल हम लोग का पास है, आने वाला टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग सिर्फ दिखाना चाहते हैं। मुझे दिखता है आने वाला टाइम हम लोग एक बेहतरीन मुकाम हासिल करने जा रहे हैं।
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna लड़के हम तो जीत लेंगे जो ख्वाब थे कल के, चूमू दामन आसमां के पतंग से मिलके। तैयार है हम, तैयार है, तैयार तैयार है, तैयार है, तैयार है हम, तैयार है। सुनिया फैबिया, टीम फैबिया, सुनिया फैबिया, टीम फैबिया, सुनिया फैबिया। সব মানুষের সমস্যা এক নয়, মানুষের স্কিন এক থাকে না, মানুষের হেয়ার কন্ডিশন এক থাকে না, মানুষের অ্যাটমসফিয়ার এক থাকে না, ওয়েদার এক থাকে না। আজকে আপনার এখানে যে ওয়েদারটা আছে নিশ্চয়ই নাগাল্যান্ডে সেই ওয়েদারটা নেই, জম্মু কাশ্মীরে সেই ওয়েদারটা নেই, রাজস্থান বা পাঞ্জাবে সেই ওয়েদারটা নেই, জল সেরকম নেই। তাহলে কাস্টমাইজ ওয়েতে প্রোডাক্ট যদি আমরা বানাতে পারি তার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী, আমরা যদি মোবাইলে এমন টেকনোলজি ফিট করলাম, এআই টেকনোলজির মাধ্যমে আপনার পুরো ডেটাটাকে আমরা কালেক্ট করলাম, কি আপনার স্কিন টাইপ কি, আপনার হেয়ার টাইপ কি, আপনার হেলথ কন্ডিশন কি, এবং আমরা সাজেস্ট করলাম তার মাধ্যমে যে আপনি এই ধরনের প্রোডাক্ট আপনি ইউজ করুন, তাহলেই আপনার বেটার রেজাল্ট পাবেন। আর যদি সত্যি সত্যি আপনি বেটার রেজাল্ট পান তাহলে কি দাঁড়াবে, আপনি কিন্তু লয়াল কাস্টমার হয়ে যাবেন। ক্লাবিয়া একজন লয়াল কাস্টমার দরকার। ক্লাবিয়া কি চায়? কনসিস্টেন্ট বিজনেসটা চায়। কেন? কনসিস্টেন্ট বিজনেস না হলে আপনাদের ইনকাম কন্টিনিউয়াস প্রসেসে আসবে না। যদি তা না হতো তাহলে আমরা আজকে মার্কেটে যেমন প্রচুর কোম্পানি আছে যারা 2 বছর 3 বছর 4 বছর পয়সা আর্ন করার ব্যবস্থা করে, তারপরে ঢুকে শেষ হয়ে যায়, চলে যায়। কেন? সেটা কনসেপ্ট ওরিয়েন্টেড, কনসেপ্ট সেলিং করে, প্রোডাক্ট সেল তার উদ্দেশ্য না। আর আমাদের উদ্দেশ্য প্রোডাক্ট, পিওর প্রোডাক্ট সেল উদ্দেশ্য। মানুষের প্রবলেম সলভিং হচ্ছে আমাদের মেন কাজ, প্রোডাক্টটাও সেকেন্ডারি। আগে হচ্ছে মানুষের প্রবলেম আইডেন্টিফাই করা। মানুষের যদি প্রবলেম আপনি সলভ করতে পারেন, অটোমেটিক্যালি আপনার ব্যবসা হবে, পয়সা অটোমেটিক বাই প্রোডাক্ট হয়ে আসবে। ফলে মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের প্রবলেম সলভ করতে হবে যে কোনো উপায়, সেটা প্রোডাক্ট হতে পারে, সার্ভিস হতে পারে, যে কোনো ভাবে হতে পারে। এরকম নানা রকম চিন্তা ভাবনাদের রয়েছে। আজকের সময় খুব সীমিত, আপনারা নেক্সট টাইম আমাদেরকে নিশ্চয়ই ডাকবেন। আশা করি সেখানে বিস্তারিত আরো আলোচনা করতে পারবো আমরা। আগামী দিনে আমরা আপনাদেরকে অনেক বেটার সার্ভিস দেওয়া এবং বেটার কোয়ালিটির প্রোডাক্ট দেওয়া এবং যে সমস্ত কথাগুলো আজকে বললাম সেই কথাগুলো যেন আমরা রাখতে পারি, ঈশ্বর আমাদের সেই ক্ষমতা দিক। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। पता है आज आप लोग जहां पर मौजूद हो, आप लोग जहां पर बैठे हो, बहुत सारे लोगों का यहां तक पहुंचने का एक सपना है, लेकिन वो लोग पहुंच नहीं पाए। आप लोगों के पास अभी तक, आज तक जो कुछ भी है, चाहे वो नाम हो, शोहरत हो, पैसा हो, कुछ भी हो, बहुत सारे लोग ये सारे चीज पाने की सपना देखते हैं, लेकिन हम लोग है कि दूसरों को देख के दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं? जो कुछ भी अपने पास है उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करनी चाहिए ऊपर वाले के पास, और जो कुछ हम लोग और भी आगे जाके
Very good evening to all the Flavians. Very good evening, Good evening, sir. sir, Good and evening, good evening, sir. ma'am. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, Good evening, sir. sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good Good evening, evening, Shoma sir. ma'am, Panchami ma'am, Nita Vishwas ma'am, Anil Kumar sir, Good Bijoy evening, Sharma sir. sir. Very good evening to you. Good evening, Gaurav sir. Chaudhary sir, कैसे हैं आप? Shunchita ma'am, अच्छी Rekha हूँ, ma'am, सर। everyone. Very good Good evening to evening, all sir. Flavians. Good evening. Good evening, Hena Good ma'am. evening. Babun Ghosh, Tushar, our new generation. Thank you Good so evening, much for sir. joining. Good evening, Good Sheila evening, ma'am. sir. Good evening, Shobori ma'am. Good evening, sir. सभी को मोटा मोटी स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा समय वेस्ट ना करते हुए सभी लोग एक बार वीडियो एंड माइक ऑन कर लीजिए जल्द से जल्द, और जय हो फ्लैविया बोलने के लिए रेडी हो जाइए। तैयार है? वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, काइंडली जल्द से जल्द वीडियो ऑन कीजिए, जल्द से जल्द। रेडी, 3, 2, 1। जय हो फ्लैविया। जय हो फ्लाविया। जय हो जय फ्लैविया। हो फ्लाविया। जय हो फ्लैविया। Joy of Flavia. थैंक यू सो मच। जय थैंक हो यू सो मच। फ्लाविया। जय हो फ्लैविया चाइना मैम, सोनाली मैम, वेरी गुड जय इवनिंग हो टू यू। फ्लाविया, सर। वेलकम। Jai Flavia. ऑल राइट, गुड इवनिंग, सर। जय फ्लाविया। गुड इवनिंग। Jai Flavia. गुड इवनिंग। एक जोरदार ताली, क्योंकि आज का भी मीटिंग 100 पीपल आर ऑलरेडी हियर। जस्ट अ मिनट। 100 पीपल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जोरदार ताली आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। लास्ट वीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास हुआ, ये वीक भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे होने वाला है। एंड कुछ पॉइंट्स, आई नो कुछ पॉइंट्स फिर भी बाकी रह जाते हैं, उसके लिए मैं थर्ड वीक यानी 3 वीक 3 वीक्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस कोर्स। रेडी है आप सभी? रेडी है तो कमेंट पे जल्द से जल्द वाई डाल दीजिए, जल्द से जल्द। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग कोई अपना स्क्रीन मत शेयर कीजिए अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो जैसे कि सभी लोगों को मालूम है कि प्रीवियस वीक में हम लोग बहुत बेहतरीन पॉइंट तक पहुंचने ही वाली थे, लेकिन समय निकल गया था। एंड समय ही एक ऐसा चीज है जो ऑलवेज ऑलवेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी को मालूम है, ऑलवेज अगर देर हो जाए तो समय निकल ही जाता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, हर वीक हम लोग फिर से प्रेजेंट होते हैं, फिर से वही जज्बा के साथ फिर से वही मीटिंग कंडक्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। 32 जन यहाँ पे वाई डाल दिए हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी एक वीडियो आप सभी के लिए मैं लाया हूं। रेडी है आप सभी उसके लिए? लास्ट वीक में क्या वीडियो, किस वीडियो के ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे? कोई मेंशन करेगा कमेंट पे प्लीज? वीडियो किसके बारे में था? जो जो मीटिंग अटेंड किए थे। गुड इवनिंग मैम। जो जो वीडियो देखे थे, टॉपिक क्या था सर? व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द वीडियो? कोई मेंशन कीजिए चैट पे जल्द से जल्द, तब तक मैं वीडियो रेडी कर लेता हूं। जल्द से जल्द रेडी कीजिए। अभी भी ये लोग अभी भी वाई डाल रहे हैं। ऑल राइट, तो ठीक है। लास्ट वीक का वीडियो था, इट इज अबाउट रॉबर्ट कियोसाकी, रिच मैन, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। ऑल राइट, वीडियो मेरा रेडी हो गया है, सभी को मालूम है। अभी भी वाई आ रहे हैं। थैंक यू सो मच रिपेट सर, माटू सरदार, यस, रिच डैड पुअर डैड, रसल सर, थैंक यू सो मच, बहुत बेहतरीन चीज। अब वापस आते हैं। आज एक बुक का ऑप्शन मैंने आप सभी के लिए रेडी किया है। ये है साइकोलॉजी ऑफ मनी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन क्या होता है, रेगुलर काम करते हैं, काम करते करते और किसको और ध्यान रहता है कि हम लोग वीडियो दोबारा देखें, याद करें, कुछ नया चीज सीखे। हमेशा कुछ ना कुछ एज अ फ्लैवियन लगे ही रहता है। तो घबराने वाली बात नहीं है। यही एक मीटिंग का मौका मिलता है जहां पे हम लोग सभी साथ मिलके सीख सकते हैं। तो ऑल राइट, चैट एक बार लास्ट बार के लिए चेक कर लेता हूं। AK सिंह सर, थैंक यू सो मच। सोनाली मैम, थैंक यू सो मच फॉर द वाई। एंड लेट्स कई बार स्टार्ट। हम ये सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे होने पर भी हमेशा एक मीडियोकर की लाइफ ही जीते रह जाते हैं, और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में मिलियनेयर। ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा एंड देखिएगा। जो जो आज अभी बाहर है, घर पे प्रेजेंट नहीं है, उनके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। व्हाट्सएप में राइट आफ्टर द मीटिंग मैं वीडियो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, मैं पूरा वीडियो यहाँ पे अभी कंटिन्यू नहीं करने वाला हूं, क्योंकि कुछ कुछ मटेरियल ऑलवेज आप सभी का
होमवर्क रहना चाहिए। अगर एग्री करते हैं तो कमेंट पे एक बार जल्द से जल्द वाई डाल दीजिए कि सर आप जो होमवर्क देते हैं मुझे करने में बहुत मजा आता है, तो वाई डाल दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, ऑल राइट, बहुत स्पीड बढ़ गया है, पहले से तो बहुत स्पीड बढ़ गया। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा आप सभी फ्लैवियन से, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में दिस ईयर कुछ नया सीखे हैं आप लोग कि नहीं? कुछ नया जाने हैं कि नहीं? एक बार चैट पे मेंशन कीजिए वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो, जल्द से जल्द। क्योंकि हर हफ्ते, अभी देखिए, समय चेंज होने में, इंसान चेंज होने में 1 साल नहीं लगता, बल्कि बहुत ही जल्दी अभी काम बन जाता है, एक एक महीना में। एज कंटेंट, कि कंटेंट भी हर हफ्ते बदल रहा है, डायनामिक रह रहा है, वैसे ही इंसान भी आज बहुत ज्यादा डायनामिक बन चुके हैं। एक बार लास्ट चैट में चेक कर लेता हूं, एवरीवन इज सेइंग वाई सर। ओके फ्लैवियंस, तो लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो। बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस वक्त पैसों को लेकर जो आप डिसीजन ले रहे होंगे वो आपके आने वाले कुछ सालों के फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेंगे। तो क्यों ना अभी से पैसों की साइकोलॉजी को समझा जाए और जल्दी से इसका एडवांटेज लिया जाए। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही किताब के बारे में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउसेल ने लिखा है। ये किताब पर्सनल फाइनेंस को ह्यूमन बिहेवियर के लेंस से परखती है। ये कई सब्जेक्ट पर एक फ्रेश नजरिया देती है, जैसे कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की बुक फोकस करती हैं ऐसी चीजों पर जैसे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक सेल किए जाएं या पोर्टफोलियो बनाया जाए। हाउसेल लोगों और पैसों के बीच के रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं, इस पर पकड़ बनाने के लिए कि क्यों लोग खुद को कर्ज के बोझ तले दबा लेते हैं। आपको इंटरेस्ट रेट जानने की जरूरत नहीं है, आपको लालच को, असुरक्षा को, पॉजिटिविटी को स्टडी करने की जरूरत है। अच्छा पैसा होने का आपके स्मार्ट होने से बहुत कम लेना देना है, लेकिन ज्यादा इस चीज से लेना देना है कि किस तरह आप बिहेव करते हैं, सही चीजों में एंगेज। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या था पॉइंट? एक जन अनम्यूट करके बताइए, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? बिहेवियर सर। बिहेवियर। हर वक्त फोकस करना है बिहेवियर पे। बिहेवियर जब लोगों के साथ अच्छा हो जाएगा, भरोसा जीत लेंगे, भरोसा जीत लिए, पैसा आना स्टार्ट होंगे। ऑलराइट, और चांस है कि आप सक्सीड कर जाएंगे। इसी तरह से चाहे आप में कितनी भी इंटेलिजेंस, समझ या अंदर की खबर हो, ये आपको गलत बिहेवियर से उपजे रिजल्ट से नहीं बचा सकती है। बुक का हर चैप्टर एक इंसान के पैसों के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ निश्चित बिहेवियर्स अच्छे नतीजे की गारंटी होते हैं, जबकि दूसरे बिहेवियर्स फेलियर की। इस बुक में मनी से जुड़े बहुत सारे लेसन पर बात की गई है। कुछ लेसन हमारे कुछ निश्चित व्यवहार के प्रति सजग बनाते हैं, दूसरे लेसन हमें लाभकारी आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन लेसन्स की खूबसूरती यह है कि इन्हें कोई भी कर सकता है। ये सिर्फ ज्यादा इनकम वाले लोगों के लिए या बहुत बड़ी एजुकेशनल डिग्री वालों के लिए नहीं है। ये बुक आपका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप और एटीट्यूड सुधारने का काम करेगी। ये मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ अनुशासन नहीं किया। वीडियो में कभी थोड़ी लंबी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो सब वीडियो को देखने लेसन्स को डिटेल में समझते हैं। नो वन इज क्रेजी। हर एक की अलग सोच होती है कि किस तरह दुनिया काम करती है। आपका दुनिया को देखने का नजरिया कई हालातों, वैल्यूज और बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता है। आपका अपने पैसों के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस का दुनिया में होने वाली घटनाओं से लेना देना 0.000000001% है, लेकिन 80% इस बात से है कि आप किस तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। कोई भी चीज आपके डर और अनिश्चितता की ताकत को रोक नहीं सकती है, चाहे आप कितना भी पढ़ लें या ओपन माइंडेड हो जाएं। हम सब ये सोचते हैं कि हमें पता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम इसको एक पतले से रेशे के बराबर भी अनुभव नहीं कर पाए हैं। यूएस में लॉटरी खरीदने वालों पर गौर करें। लो इनकम वाले लोग सालाना इस पर $400 तक खर्च करते हैं, यानी कि लगभग 30,000 रुपए। ये नंबर हायर इनकम वालों को भी चौंका सकता है। इसे पैसों की एक उम्मीद और ख्वाहिश का नाम देकर कुछ लोग इसको सही ठहरा सकते हैं। बिना खुद को उनकी जगह पर रखे ये जान पाना मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। लक एंड रिस्क। कोशिशों से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन लक और रिस्क भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बिल गेट्स उन चुनिंदा हाई स्कूल्स में पढ़े हैं जहां 1968 में कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर टीचर बिल ढगौल की कोशिश नहीं होती, जिन्होंने उस टाइम पर एक $3,000 का कंप्यूटर खरीदा, तो इसकी संभावना कम है कि बिल गेट्स को सेम करियर में सक्सेस मिलती। बिल गेट्स खुद ये चीज मानते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। लेक साइड
लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब क्या निकला कि अपने इंस्टीट्यूशन को ऑलवेज रिस्पेक्ट करते रहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ही आपका मेन मेन मटेरियल रेडी कर देता है, जिसके बेसिस पर आप अपना बिजनेस स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। एग्री करते हैं तो वाई डाल दीजिएगा मैसेज पे। थैंक यू सो मच। लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो। में तीन बहुत बेहतरीन कंप्यूटर स्टूडेंट्स थे जो आपस में दोस्त भी थे, बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट एवांस। केंट एवांस को भी सक्सेस मिलना तय था, लेकिन उनके ग्रेजुएशन से पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसे एक बैड लक के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। किस्मत और जोखिम लेना, ये दोनों वो रियलिटी हैं जो हर एक की लाइफ में उसके खुद के एफर्ट के अलावा भी उसके आउटकम पर असर डालती हैं। ये दोनों चीजें होती हैं क्योंकि सिर्फ आपके एफर्ट्स के दम पर ही आपको 100% नतीजे मिलने के लिए दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसी ऐसी घटना का जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका भी आपके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। नेवर इनफ, ये कहानी है राइटर कर्ट और जोसेफ की, जो एक बिलियनर की पार्टी में शामिल होते हैं। कर्ट ने कहा कि ये बिलियनर एक दिन में उतने पैसे कमा लेता है जितना हेलर अपने पॉपुलर नॉवल से आज तक कमा नहीं पाए हैं। हेलर ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, वो है इनफ, यानी कि बहुत। जो आपके पास है उसे खतरे में डालने की कोई वजह नहीं बनती। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल ये है कि आप अपने गोल पोस्ट को मूव ना करने दें। खुद को दूसरों से तुलना करना ही गलती है। वेल्थ और जलन पैदा करने के लिए कैपिटलिज्म अच्छा है, लेकिन सामाजिक तुलना एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑलवेज जब हम लोग काम करने उतर जाते हैं, वी हैव द टेंडेंसी कि एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। अरे, उसका पे आउट ज्यादा आ रहा है, मेरा पे आउट क्यों नहीं? ऐसा होता है आप सभी के साथ, एग्री करते हैं? मुझे मालूम है हर एक किसी के, देखिए सभी लोग यहाँ पे ग्रो करने के लिए आए हैं, सभी लोगों को पैसा बनाना है, सभी लोगों को सुस्त रखना है, लेकिन एक दूसरे के साथ compete करके नहीं, बल्कि अपना अपना पेस फॉलो करते हुए। कोई आज 5,000 कमा रहा है, कोई वहां पे 5 लाख कमा रहा है। आपको उनको देख के दुखी नहीं फील करना है, बल्कि इंस्पिरेशन लेना है कि एक समय आएगा, एक वो साल आएगा जहां पे मेरा ये 5,000 में और डबल ट्रिपल 5 गुना जीरो और बढ़ जाएंगे। जेलसी नहीं करना है फ्रेंड्स। जेलसी करते हैं तभी जाके टीम में दिक्कत आ जाता है बहुत ज्यादा। आप सभी को मालूम है, जिन जिनका पास अभी बहुत बड़ा एक बेस रेडी हो गया है, बहुत बड़ा टीम रेडी हो गया है, सभी को ये प्रॉब्लम से उलझना पड़ता है। तो यहाँ पे जेलसी के जगह में अगर थोड़ा सा शांत होके खुद को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भैया शांत हो जाइए, अभी झमेला करके कोई फायदा नहीं है। वो अपने पेस में ग्रो करते हैं, मैं अपने पेस में ग्रो कर रहा हूं, मेरा डाउनलाइन अलग पेस में ग्रो कर रहे हैं, सभी ग्रो कर रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है। कभी किसी को तुलना नहीं करेंगे कि देखो वो इतना कर पा रहा है तो तुम क्यों नहीं। ये करना जरूरी है, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज ज्यादा हो जाती है तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप ही बताइए क्या होता है? क्या होता है? चाय में अगर शक्कर, दूध सब ज्यादा हो जाएगा तो चाय चाय जैसा फ्लेवर बढ़िया नहीं आने वाला है। फ्लेवर लाने के लिए आपको बैलेंस करके थोड़ा थोड़ा करके राइट अमाउंट ऑफ चीज डालना पड़ता है, राइट? अगर एग्री करते हैं तो वाई डाल दीजिए और वीडियो में फोकस करते हैं। लेट्स गो। आपको इस सीढ़ी पर हमेशा आपसे ऊपर कोई मिल ही जाएगा। इनफ होने का मतलब है आपको ये पता हो कि किस चीज को अवॉइड किया जाए, जिसके लिए आपको बाद में पछताना ना पड़े। कई चीजें रिस्क लेने लायक नहीं होती हैं, चाहे उनसे कितना ही फायदा क्यों ना हो, जैसे कि रेपुटेशन, आजादी, दोस्त, परिवार, प्यार और खुशी। जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस खेल का हिस्सा ही ना बने। कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, वॉरेन बफेट के पैसों के पीछे एक सिंपल सा फैक्ट है, वो सिर्फ एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं है, वो कंसिस्टेंट 75 सालों तक एक अच्छे इन्वेस्टर रहे हैं। इनके फाइनेंशियल सक्सेस को एक फाइनेंशियल बेस में बांधा जा सकता है जो उन्होंने अपने शुरुआती सालों में बनाया था और बाद में उसे लंबे समय तक बनाए रखा। इन्वेस्टिंग उनका स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है टाइम। अच्छी इन्वेस्टमेंट हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न के बारे में नहीं होती, ये उन अच्छे रिटर्न्स के बारे में है जिनके साथ आप चिपक कर रह सकें और लंबे समय तक इसे दोहरा सकें। और यहाँ पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, कंपाउंडिंग के ऊपर मैं एक पॉइंट आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। एक पॉइंट, एक एक्सरसाइज आपको घर में बैठ के करना होगा। रेडी है? पॉइंट है द पावर ऑफ 1 रुपी। पॉइंट है द पावर ऑफ 1 रुपी। एक बार एक काम कीजिए,
एक कॉपी लेके बैठिए या एक पेन और पेपर लेके बैठिए और पेपर में लिखिए 1, ठीक है, और नेक्स्ट में हो जाएगा। ऐसा 30 दिन क्या करेंगे, ऐसे 30 दिन का इस कंपाउंडिंग इफेक्ट को डालेंगे। कंपाउंडिंग इफेक्ट यानी 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, ऐसे करके लेडीज एंड जेंटलमैन आप अपने कॉपी में मेंशन करके 30 डेज तक इसको कंटिन्यू कीजिए। क्या करेंगे, 30 डेज तक इसको कंपाउंड करेंगे, यानी 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, ऐसे करके 30 स्टेप आप जाइए। वहां पे आपका टोटल फिगर क्या आ रहा है, ये आपसे मैं नेक्स्ट मीटिंग में पूछने वाला हूं। क्या आप ये चीज करके देखेंगे? करके देखिए। अगर आप किसी को करवाते भी है, उसका भी दिमाग घूम जाएगा कि इतने पैसा वो बना सकता है। बस कमी एक ही चीज की है, वो है एक्शन लेने की, वो है एग्जीक्यूशन करने की। देखिए, मीटिंग ट्रेनिंग करना इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस ये मीटिंग को मैंने अपने टीम में कैसे करके लगाया, इस मीटिंग से क्या फायदा मैं अपने टीम को दिला पाया, दिस इज द मेन पॉइंट। और जब तक ये एग्जीक्यूशन नहीं होता है, जब तक ये साइकोलॉजिकल गेम हम लोग नहीं खेलते हैं या नहीं सीखते हैं, तब तक थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते ही जाता है। और कॉम्प्लिकेशंस जब होते जाता है, ये रोलिंग में ही रह जाता है, यानी क्या हो जाता है, टिकिंग टाइम बॉम्ब, कि एक दुर्घटना से हम लोग एक स्टेप दूर है, दुर्घटना से एक स्टेप दूर है। और इसको अगर समय रहते हम लोग ठीक नहीं कर लेते हैं, बाद में जाके पछतावा होने वाला है, ये भी कंफर्म। तो मैं चाहता हूं कि आज के समय में हर एक फ्लैबियंस को ये चीज से जूझना ना पड़े। दिमाग को शांत रखिए। अल्टीमेटली वी आर वर्किंग विथ पीपल। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को फोर्स करके, किसी को डाउनग्रेड करके मैं खुद बड़ा होने वाला हूं या खुद बड़ा हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो सर मैम भी सेम टू सेम काम करते, लेकिन सर मैम कभी ऐसे ही प्रमोट नहीं किए। तो लॉन्ग रन में गेम खेलना है तो लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आज के समय में बहुत सारे टीम साथ में डेफिनेटली चल रहे हैं। सोचिए, खुद के टीम के बारे में सोचिए, सीनियर के बारे में सोचिए, डाउनलाइन के बारे में सोचिए, कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो दिखावा डेफिनेटली करते हैं कि हाँ मैं हेल्प कर रहा हूं, लेकिन क्या वो एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं? Sir, I ये have a भी question. Can I एक्चुअली, ask? यस, यस सर, बोलिए। Sir, when you mentioned the term compounding, what did you say about the power of one then? द पावर ऑफ 1 एज इन 1 रुपया अगर डबल कंपाउंड करते हैं, यानी 1 का 2, Okay. 2 का 4, Okay. 4 का 8, ऐसे करके Hmm. अगर किसी को भी आप कैलकुलेट करवा के अबाउट 30 डेज का कैलकुलेशन करवा के दिखाते हैं, वहां पे जो अमाउंट ऑफ रुपीज वहां पे आपको दिखने वाला है, ये लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स हमको ज्यादा पैसे का सेल करना होता है, प्रोडक्ट्स कम सेल करना होता है, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करते जाना है और एक स्टेप उसको इंप्रूव करना होगा। क्या करना होगा, एक स्टेप इंप्रूव करेंगे। यानी आज अगर मैं एज फॉर एग्जांपल 2 रुपए का माल बेच रहा हूं या 2 रुपए का कमीशन मेरा जनरेट हुआ, तो नेक्स्ट दिन का टारगेट एटलीस्ट 1%, 2% बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब इसी कैलकुलेशन पे हम लोग कहते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट वर्क्स लाइक मैजिक। तो 2 रुपए का आप देखिएगा 50 करोड़ बन जाने वाला है। अब आप ही बताइए, जो मार्केट में अभी काम कर रहे हैं या न्यू आ रहे हैं, स्पेसिफिकली न्यू, जिसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, लीडरशिप के बारे में कोई धारणा नहीं है, अगर एज अ फ्लैबियन, एज अ गुड लीडर, एज एन इंस्पायरिंग लीडर मैं उसको प्रमोट करता हूं, उनको समझाता हूं कि भैया आपसे मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट का बातचीत नहीं कर रहा हूं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट का भाई कोई बात ही नहीं है, आप बस ये दो दो करके मल्टीप्लाई करते जाइए। और ये मल्टीप्लाई करते वक्त आपको जैसा सपोर्ट लगे, सर जी मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो आप ही बताइए लेडीज एंड जेंटलमैन, कहां पे हम लोग एक जगह प्रमोट करते हैं कि सही सर जी आप 2000 का माल ले लीजिए। अगर ऐसे करके भी हम लोग बोलते हैं एक सर्टेन क्राउड को, टीयर 2 हो गया, टीयर 3 हो गया, क्योंकि ये चीज टीयर 1 में उतना फ्लुएंटली काम नहीं करें, ये काम ज्यादा करता है टीयर 2 सेक्टर में, टीयर 3 सेक्टर में। अब इनको जब ये बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज हम शेयर करते हैं, तो उनको लगता है कि सर के पास बहुत बेहतर आइडिया है, सर मुझे डेफिनेटली हेल्प कर पाएंगे, सर मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर देंगे, सर मेरा प्रोडक्ट रोटेशन का सिस्टम सही कर देंगे, सर मेरा लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए मुझे कई कई प्रेजेंटेशन देंगे, जिसको देकर जिससे मैं अपने डाउनलाइन को सिखा पाऊंगा।
करेक्ट है सर? आपका पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर पाया सर जी? युधाजीत मानना सर? Yes, it's clear. ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। पैसा पाना और बनाए रखना बिल्कुल अलग चीजें हैं और इनके लिए बिल्कुल अलग माइंडसेट और स्ट्रैटेजीज चाहिए। पैसा पाने के लिए रिस्क लेने की जरूरत होती है, पॉजिटिव बने रहने और खुद को इसमें झोंक देने की। पैसा बनाए रखने के लिए जरूरत होती है ठीक इसके उल्टे की। इसके लिए चाहिए विनम्रता और ये डर कि जो आपने कमाया है वो बहुत जल्दी आपके हाथ से निकल भी सकता है। माइकल मोर्टिस, जो कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, कहते हैं, हम ये समझते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अभी तक के मिले रिवॉर्ड्स पर रेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हम ये मानकर नहीं बैठ सकते कि बीते हुए कल की सक्सेस आने वाले कल की सक्सेस में तब्दील हो जाएगी। एक सर्वाइवल माइंड होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। फाइनेंशियल अनब्रेकेबल होने का लक्ष्य बनाएं, इतने कैपेबल बने कि मार्केट के उतार चढ़ाव सहन कर सकें और गेम में लंबे समय तक बने रह सकें ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। प्लान करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी प्लान आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा। हर प्लान में गलती के लिए जगह रह जाती है। जितना आपको अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक खास एलिमेंट की जरूरत होगी, उतना कमजोर आपका प्लान होगा। आने वाले कल को लेकर आशावादी रहें, पर सक्सेस के रास्ते में आने वाली बाधाओं को लेकर भी सचेत रहें। टेल्स यू विन, ये एक आर्ट कलेक्टर हेंस ब्रिगेन की स्टोरी है। उन्होंने पिकासो, बर्गस, क्लीस और मैट्रिसेस की एक अमेजिंग कलेक्शन इकट्ठा की। लोग उसके आर्ट में इन्वेस्ट करने की कला से बहुत चक्के रह जाते थे। सच्चाई ये थी कि उसने बहुत ज्यादा संख्या में आर्ट खरीद लिए थे। उसके कलेक्शन का कुछ ही हिस्सा वैल्यूएबल था। बर्गन कई बार गलत भी हो सकते थे, फिर भी आखिर में वो सही निकलते थे। कोई भी चीज जो विशाल हो, प्रॉफिटेबल हो, फेमस हो और इन्फ्लुएंशियल हो, वो एक टेल इवेंट का नतीजा होती है, हजारों या लाखों में एक इवेंट की तरह। अब हम एक वेंचर कैपिटल मॉडल के बारे में बात करेंगे। अगर एक फंड 100 इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 80। आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं जब मैं व्हाट्सएप में आप सभी को ये वीडियो फॉरवर्ड करूंगा, आप लोग इसको जरूर स्टडी करेंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट से लेके बाकी बहुत सारे और बेहतरीन पॉइंट है जिसको अगर आप अलग से चर्चा करते हैं, खुद को समझाते हैं, खुद को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हर चीज ऐसा नहीं है कि आप सभी को मालूम नहीं है। आप सभी को डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉइंट्स मालूम होता है। यहाँ पे आके जब आप रिवीजन कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। राइट है सर? राइट है मैम? डेफिनेटली। तो वापस आते हैं प्रेजेंटेशन पे, क्योंकि ये भी आप सभी को देना अभी बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो वापस आते हैं। लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे, इट वाज अबाउट एसआईपी, आरडी, कैसे करके हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़िया करेंगे और इसको अपना पैसे को मल्टीप्लाई भी कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं रिकैप दे देता हूं। हर वक्त ट्राई कीजिएगा जब भी आप फोकस करेंगे कहाँ पे, सेविंग्स पे। जैसे मानिए कोई नया लीडर अगर यहाँ पे आके कुछ पैसा कमा लेते हैं, कुछ पैसा कमा लेते हैं, तो उसको पहले फोकस करना चाहिए कि मैं कितना प्रतिशत पैसा यहाँ पे मैं बचा पाया। तो एक्सपेंस को साइड में रखेंगे, पहले करेंगे सेव। यानी क्या हो जाएगा, जब भी मेरा कमीशन आ रहा है तो कमीशन माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंस। कभी ऐसा नहीं करना है कि कमीशन माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग, यानी सब खर्चा वर्चा मैंने कर लिया, उसके बाद जाके जो पैसा बच रहा है उसको मैं साइड करने हूं। यानी क्या होना चाहिए कि पहले जो परसेंटेज मैंने फिक्स किया है कि मैं सेव करूंगा हर महीने, उसको पहले साइड करके सेव कर लीजिए। सेफ रहेगा वो इन्वेस्टमेंट में। आप कभी भी अपना उंगली, अपना नाक, अपना कुछ भी मत डालिए, क्योंकि उसको स्टेबल रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कौन से महीने में आपका बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बिजनेस करने जब हम लोग उतर गए हैं तो हमेशा याद रखिए प्रॉफिट एंड लॉस होते ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इट विल ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल, इट विल ऑलवेज बी एट लॉस। नहीं, हम लोग भी बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आज सभी को मालूम है, तो वहां पे भी कभी कभी लॉस होते हैं, कभी कभी प्रॉफिट होते हैं। लेकिन हम लोगों का कोशिश ऑलवेज ये रहता है कि वी ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन पॉजिटिव, फोकस ऑन प्रॉफिट, फोकस ऑन ग्रोथ। लेकिन लॉस तो भूल नहीं जा रहा है, लॉस भी प्रीवियसली हुआ है, राइट? तो कभी भी ऐसा ना करें कि एक्सपेंस को पहले आप यूटिलाइज कर लिए, फिर जाके आप 10% 5% सेव किए। सेविंग्स को पहले हटाइए और ट्राई कीजिए उसी सेविंग्स से आप 500 रुपया, 1000 रुपया, जितना भी आपका हो रहा है कैलकुलेशन में, पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए। 2 जगह इन्वेस्ट करना है, एक है पर्सनल वेल्थ के लिए, सेकंड है बिजनेस वेल्थ के लिए।
यानी बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट एज इन क्या क्या, बिजनेस एक्सपेंसेस हो गया, ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गया, आपका प्रोडक्ट कितना आप स्टॉक रोटेट किए हैं, कितना और स्टॉक लिए हैं ताकि आप माल बेच पाए, ये सब आपका हो जाता है बिजनेस एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस में वगैरह वगैरह, संसार चलाने का खर्चा, बच्चों की फीस, ट्यूशन वगैरह, खाने का खर्चा, ये सब हो जाता है। अब ये 500 का एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, अभी के टाइम पे आप सभी को लमसम तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी आपके लिए और ज्यादा, बैंक्स भी आपके लिए और ज्यादा फैसिलिटी कर दिए हैं कि आप हर महीने, सर जी अगर आप 2000 बचा रहे हैं तो 500 वहां से इन्वेस्ट करके रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपका छोटा छोटा करके सेविंग का अमाउंट, आप सेविंग्स पे ज्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। एक जगह अगर आपका पैसा पड़ा रहा तो उस पैसे में आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये सभी को मालूम है। आज के टाइम में इन्फ्लेशन रेट, आरबीआई कट्स के बावजूद भी फिक्स डिपॉजिट का परसेंटेज ज्यादा बढ़ा नहीं है, बढ़ा है क्या आप सभी को मालूम है। इसीलिए पैसे को एफडी भी कर सकते हैं क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट, लेकिन इसमें परसेंटेज थोड़ा कम आता है। तो यहां पे कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन और क्या है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सबसे ज्यादा बेहतरीन और क्या है, फिजिकल गोल्ड भी है। और मार्केट में आ गया, अगर फिजिकल गोल्ड में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, ये भी बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन याद रहे, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ये काम करते हैं तो आपको एडिशनल कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है, क्योंकि आप टेन्योर से पहले, टेन्योर यानी समय से पहले अपना पैसा आप उठा लिए तो उसके लिए अलग चार्ज लगता है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली 3 साल 5 साल इसको सेविंग कर लेते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू और ज्यादा आने वाला है। ऐसे कई सारे डिजिटल गोल्ड वाले कंपनी आ गए हैं, गुल्लक गोल्ड बोल के भी एक ऐप आ गया है, जो जिसको मालूम नहीं है एक बार उसके बारे में गूगल पे जाके लिखिए और स्टडी कीजिए कि आज के टाइम में गोल्ड पे इन्वेस्ट करना कितना सेफर ऑप्शन बन गया है, राइट। यहाँ पे भी एक फंडामेंटल चीज है, जैसे मानिए अगर आज आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और आपका आपका टाइम पीरियड ओवर हो गया, यानी आप कर लिए हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया, टेन्योर कंप्लीट, अब आपको पैसा चाहिए, अब ये पैसा भी आप ले सकते हैं। और एक चीज आप कर सकते हैं यहाँ पे, वहां से आप फिजिकल गोल्ड का भी डिमांड कर सकते हैं, यानी आपके घर में डिलीवरी हो जाएगा गोल्ड, जितना ग्राम का आपका गोल्ड होगा या जितना केजी, क्योंकि मैं केजी में ही कहना चाहूंगा, हर एक के पास अभी ग्राम्स नहीं बल्कि केजी में गोल्ड होना चाहिए। तो उस गोल्ड का वैल्यूएशन बेस करके वो आपको अपने आपके घर में गोल्ड भिजवा देंगे। और कहाँ पे हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट्स हो सकते हैं, बहुत सारे और रास्ते हैं, लेकिन ये सब जगह में थोड़ा परसेंटेज कम मिलता है लेकिन सेफ है। अब आप बताइए, परसेंटेज ज्यादा चाहिए कि सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, कमेंट पे मेंशन कीजिए। परसेंटेज ज्यादा चाहिए कि सेफ चाहिए, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज लेके छोड़ दीजिए, और सेफ चाहिए तो सेफ लिखकर छोड़ दीजिए। सेफ चाहिए तो सेफ है तो ये सब चीज पे आप कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर पैसा ज्यादा कमाना चाहता है लेकिन आइडिया नहीं है तो उसको मैं एक कॉन्सेप्ट बोलूंगा, आज के समय यूट्यूब में स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग बहुत विविडली उसमें मिलता है, बहुत बढ़िया बढ़िया यूट्यूबर्स आ गए हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत टॉप लोग आ गए हैं जो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना भी सिखाते हैं। स्टॉक में क्या होता है, अप्स एंड डाउन ज्यादा रहते हैं, लेकिन रिस्क के साथ साथ आपका पैसा भी थोड़ा बहुत ज्यादा बनता है, अगर ओनली इफ यू आर स्टडिंग इट प्रॉपरली, यानी इसके बारे में अगर आप प्रॉपरली रिसर्च करते हैं तभी जाके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, वरना मत कीजिए, राइट। तो ये चीज क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट, पहले खुद सीखेंगे फिर डाउनलाइन को सिखाएंगे, पहले खुद सीखेंगे फिर डाउनलाइन को सिखाएंगे, फिर डाउनलाइन को जब बोलेंगे तो डाउनलाइन क्या करेगा, पहले खुद सीखेगा फिर अपने डाउनलाइन को सिखाएगा। ये चीज का मुझे रेप्लिकेशन करना है। राजी है आप सभी? चैट एक बार चेक कर लेता हूं, सेफ, एवरी वन इज ट्राइंग टू प्ले सेफ, ऑल राइट, कोई बात नहीं है, सेफ होना ही अभी बेहतर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पार्ट 3, फैमिली फाइनेंस मैनेजमेंट। स्ट्रेस स्ट्रेस कम करो, सक्सेस लाओ इज द थीम। अब क्या है, डायरेक्ट सेलिंग माइंडसेट है, सभी को मालूम है, माइंडसेट का बिजनेस है। फैमिली का सपोर्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स में मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है कि फर्स्ट स्टेप में एक्शन क्या होने वाला है और उसमें एग्जाम्पल्स क्या है, एक बार इसको आप लोग फॉलो कीजिए, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूं।
राइट। फैमिली फाइनेंशियल विजन, हमेशा ट्राई कीजिए कि अपने परिवार के साथ आप लोग बैठ के एक बैठक करें, पैसे के बारे में चर्चा करें, क्योंकि बच्चों को भी नॉलेज चाहिए। उनको हेल्प करने वाला इस मार्केट में, इस दुनिया में ज्यादा कोई नहीं है। वो भी डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे, अपने गुरुजन पे, अपने बड़े भैया पे या बहन पे, या अपने कोई दोस्त वगैरह हो सकते हैं। तो उनको अगर प्रॉपर नॉलेज मिले तो उनको क्या होगा, उनको पैसे की अहमियत समझ में आएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद भी पैसे का अहमियत समझूंगा, मैं अपने बच्चों को भी पैसे का अहमियत समझाऊंगा। करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज, सो अपना जाना मैम सेव, ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज, इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लास्ट मीटिंग में भी ये पॉइंट मैंने मेंशन किया कि ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन 50-30-20 का रेशियो। यानी 50% में मैं घर चलाऊंगा, 30% जो मेरा कमीशन आ रहा है या पैसा बना है या प्रॉफिट हुआ है उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट करूंगा, और 20% जो होगा उसको मैं प्रॉपरली सेव करूंगा या इमरजेंसी फंड में डालूंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, बच्चा या स्पाउस को खर्चा ट्रैक करने दो। जैसे मानिए एज फॉर एग्जाम्पल, आप सभी जो पेरेंट्स बन गए हैं वो अपने बच्चे को कुछ ना कुछ पैसे देते हैं मंथली। हाथ खर्चा जाके बोला जाए, कोई एक 100-200 देते हैं, कोई 500 देते हैं, कोई 1000 भी देते हैं, डिपेंड करता है अपने अपने बारे में। अब जब आप उनके साथ ये पैसा शेयर किए हैं, उनको ये सिखाना जरूरी है कि ये पैसा का खर्चा कैसे करके करना है। क्योंकि जनरली क्या हो जाता है, बहक जाते हैं लोग, बहक जाते हैं किस चीज पे, मैं ये खिलौना ले लूंगा, मैं ये फुटबॉल ले लूंगा, मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा। अब ये तो बच्चे का माइंडसेट हो गया। बड़ों का भी सेम टू सेम माइंडसेट है क्या, कि पैसा मिला तो संग संग मुझे ये लिपस्टिक चाहिए, पॉइंट है, मुझे ये साड़ी लेना होगा, ये सूट मैंने देख के रखा था, ये सूट भी मुझे अभी चाहिए। ऐसा ही होता है। तो ये चीज को, ये सर्कल को अगर आपको ब्रेक करना है तो परिवार के साथ बैठक कीजिए, डिस्कस कीजिए। पहले टीम के साथ डिस्कस कीजिए, टीम को देखिए कि आप ये चीज समझा पा रहे हैं कि नहीं, फिर आइए घर पे समझाइए। क्योंकि ये चीज जब साथ में समझते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को आप 1000 रुपए दिए हैं, क्या क्या उसको ट्रैकिंग करने के लिए आप बोल सकते हैं कि जब आप स्कूल में जा रहे हैं, अगर कोई स्कूल का बस ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करता है तो उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्चा मेंटेन कीजिए, कैसे करके करना है, किस किस दिन कहाँ कहाँ गए, कितना खर्चा हुआ, यहाँ पे हुआ। एक हो जाएगा टिफिन कॉस्ट, टिफिन में कितना पैसा गया। एक हो जाता है दोस्त के सामने दादागिरी करते वक्त कुछ ना कुछ पैसा खर्चा हो जाता है, मानते हैं कि नहीं। खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट ले लेते हैं, कुछ वगैरह वगैरह काम कर देते हैं, जिसके चक्कर में अपना वहां पर भी पैसा का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ये चीज भी ट्रैक करना है। थर्ड चीज वो इंपॉर्टेंट जो ट्रैक करना होता है, थर्ड चीज जो ट्रैक करना होता है वो है कि ये पैसा सिर्फ लायबिलिटीज में खर्चा हुआ है कि ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट यानी एसेट पे खर्चा हुआ है। अब आप बताइए, ये जो अभी तक पॉइंट्स मैंने बताया, ये क्या एसेट है कि लायबिलिटी है? कमेंट पे मेंशन कीजिए, क्या ये एसेट है कि लायबिलिटी है? जल्द से जल्द मेंशन कीजिए, चैट पे मेंशन कीजिए, माइक किसी को ऑन नहीं करना है। जो पॉइंट्स अभी तक डिस्कस हुआ, क्या ये एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट यानी जिससे आपका पैसा डबल होता है, लायबिलिटी यानी जिसपे आपका पैसा बर्बाद होता है, खर्चा होता है। मैं एक्सप्लेन भी कर दिया, लायबिलिटी। Mentioned about अब loss of a यहाँ पे, lipstick and stuff, that's a liability. यस डेफिनेटली सर। एंड व्हाट विल बी द एसेट हियर? एसेट विल बी, ये पैसा क्या आज के समय में देखिए बहुत सारे ट्रेनिंग्स कोर्सेज अवेलेबल है जहां से मैं कुछ नया सीख सकता हूं, मैं अपना पैसे को डबल करने का सीख ले सकता हूं, नॉलेज ले सकता हूं। तो क्या ये आपका बच्चा कुछ नया सीखने में इन्वेस्ट किया, कि वो भी पैसा आपसे मांग के लेके गया? क्योंकि ये चीज सिखाना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो बड़े हो कि बच्चे हो। ये चीज सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पैसा मुझे मिला है मुझे उसी पैसे से काम चलाना है। ऐसा नहीं है कि मैं जो तो बार हमें ये हाथ पातबो तो बार किंतु लोग ऐसे हमें टाका दिए देवे। ऐसा क्या होता है? नहीं होता है। और बहुत जगह पेरेंट्स सॉफ्ट हो जाते हैं अपने बच्चों पर, तो क्या करते हैं, चलिए दे देते हैं, कोई बात नहीं है, इतना क्यों कमा रहे हैं, अरे इतना आप कमाए हैं, ये आपका मेहनत का फल है। तो जब आप मेहनत किए हैं आपको फल खाने में मजा आता है। ये बच्चे मेहनत नहीं किए हैं,
लेकिन जब वो फल खाते हैं इसका मजा उसको नहीं मिलता है। द पैसा इज गेटिंग टेकन फॉर ग्रांटेड। एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं ये फ्लेवियन साहब? तो बचपन से ही अगर हम लोग फाइनेंस को बच्चे के अंदर कूट कूट के भर देते हैं और सिखा देते हैं कि री इन्वेस्टमेंट यानी सबसे पहले खुद पे इन्वेस्ट करना है, नया कपड़ा बाद में होगा, पहले सीखो कुछ नया। जैसे ये 1,000 रुपये तुमको मिला, क्या तुम नेक्स्ट महीने 1,000 से 1,500 इसको कर पाए? क्या इसको मैंने कंपाउंड कर पाया? वो भी एक महीना में, एक एक दिन पे नहीं, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे। तो ये भावना इन पे इंप्लीमेंट करना है ताकि वो ऐसे करके सोचे कि आज मुझे 1,000 रुपया मिला, नेक्स्ट महीना इसको 2,000 कैसे करे किया जाए। अब जब ये खेल में आप खुद भी इन्वॉल्व है, आपका हस्बैंड भी इन्वॉल्व है, आपके बेटे बेटी वो इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ये खेल खेलने में और मजा आ जाएगा। क्योंकि हर जगह से आपको सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिपोर्ट मिलने वाले हैं। पापा पापा मैं ये करके आया, कुछ बेहतर जगह पे आज मैंने लर्निंग के लिए पैसा खर्चा किया, तो ये सुन के आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? डेफिनेटली लगने वाला है। पहला कि ये दोबारा आपसे पैसा नहीं मांगा। सेकंड कि अपने पैसे से वो खुद के सीख, नॉलेज पे, ट्रेनिंग पे खुद ही इन्वेस्ट कर रहा है। यानी लड़का मेरा स्मार्ट है, लड़की मेरी स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, वो काम करने में उत्सुक है। और यही मेंटेलिटी और बच्चों में डालना है। क्योंकि आज के समय में लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि बहुत सारे, इंडिया का 50% पॉपुलेशन अगर यूथ है तो वहां से 25% यूथ बेकार है, जो एक्चुअली काम के लायक नहीं है। अब कैसे करके इसको काम के लायक बनाया जाए ये तो हमारे ऊपर है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज इंडियन प्रॉपर सिटीजन्स। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि यूथ को एक प्रॉपर डायरेक्शन में हम लोग गाइड करें। और हर वक्त आप देखेंगे कोई अगर यूथ आज पॉलिटिक्स में जुड़ जाता है, मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, छोटा पॉइंट दूंगा। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में जब जुड़ जाता है तो उसमें क्या होता है, उसको फ्री हैंडआउट्स मिल रहे हैं, फ्री में बहुत सारे चीज मिल जा रहे हैं, जिसके लिए क्या होता है, उसका मानसिकता, माइंडसेट खराब हो जाता है। उसको लगता है कि मैं अगर ये खराब काम भी करूं तो भी मेरा पॉकेट कुछ ना कुछ भर रहा है, तो भी मेरे दोस्त लोग मेरे साथ मौजूद है, तो भी मैं अपने कंफर्ट जोन में ही हूं, मैं यहां से निकलने वाला नहीं हूं। ऐसा माइंडसेट फॉर्म नहीं करवाना है। और अगर फॉर्म हो जाता है तो इसको कांस्टेंट काउंसलिंग में रखना है। कभी कभी स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए। क्योंकि जब तक इंसान का ईगो हर्ट नहीं होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन बढ़िया से सुनिएगा, जब तक आपका ईगो हर्ट नहीं हुआ था, क्या आप बढ़िया काम करने के लिए रेडी हुए थे? चैट पे एक बार मेंशन कीजिए। किसी के माँ बाप ने उनका ईगो हर्ट कर दिया, किसी के लीडर ने उनका ईगो हर्ट कर दिया। अब ईगो हर्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक ईगो हर्ट नहीं होता है, मैं खुद से अपने अंदर वो चार्ज नहीं पैदा करता हूं जो मुझे टॉप पे ले जा सकते हैं। करेक्ट है? तो बाकी जगह ठीक करने से पहले घर को पहले समेट लेते हैं। घर समटा रहेगा, बाकी काम में भी मन बैठेगा। एक बार चैट मैं चेक कर लेता हूं, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। लीव द कंफर्ट जोन एंड कंफर्ट जोन टू ग्रो अप। ऑल राइट तुषार, वेरी गुड। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, छोटी जीत पे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज अगर 10,000 रुपया आप कमीशन में कमाते हैं तो महीने के स्टार्टिंग पे या बीच में एक छोटा सा परिवार को ट्रीट दीजिए। और इसी पैसे से, ऐसा नहीं कि आप दूसरा काम कर रहे हैं तो वहां का पैसा भी आप लगा के कुछ कर दिए। फैमिली को बताइए ये पैसा मैंने फ्लैबिया से कमाया, और कहीं का पैसा मैं आप पर खर्चा नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये मेरा हार्ड अर्न्ड इनकम है फ्रॉम फ्लैबिया। और मैं चाहता हूं कि ये महीना जब इतना बढ़िया मैंने काम किया तो मैं अपने परिवार को लेके एक छोटा सा ट्रीट दूंगा। अब वो छोटा देखिए, छोटा मतलब ये नहीं कि आपको 5 स्टार रेस्टोरेंट में ही ऑलवेज जाना होगा, कुछ नहीं। एक एग रोल भी अगर आप, जैसे हम लोग ऑफिस में खिलाते हैं, एक एग रोल भी अगर आप किसी को खिलाते हैं, उसका देखिए, एक तो होता है कि पेट जब भर जाता है इंसान ऑटोमेटिक खुश हो जाता है, मानता है कि नहीं? तो इतना खुशी अगर मैं अपने परिवार को दे सकता हूं तो व्हाई नॉट। इससे अगर उनका माइंडसेट में ये फ्रेम होता है कि फ्लैविया एक बेहतर कंपनी है तो व्हाई नॉट। इससे अगर उनको ये फ्रेम होता है कि सीनियर का प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मिला है तो व्हाई नॉट, करना डेफिनेटली चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, कभी फैमिली से लॉस मत छुपाओ। फैमिली को दिखना चाहिए कि ये महीना अगर मैं प्रॉफिट किया हूं तो नेक्स्ट महीना अगर मेरा लॉस भी होता है
तो मैं इसको लुको चुरी खेलबो नाइटा नहीं, छुपा छुपा के नहीं रखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए कि ये महीना मेरा डाउन गया है, इसलिए नो ट्रीट। इससे क्या होता है, आपका बच्चों पे या परिवार पे एक बहुत बेहतर असर पड़ता है कि जो ब्रेड विनर है, जो परिवार के लिए पैसा कमा रहे हैं, वो अपने ग्राउंड में स्ट्रांग है। यानी आमी बेफिजूल का खर्चा हम लोग नहीं करने वाले हैं। जब वो पैसा बनेगा वहां से आपको भी गिफ्ट मिलने वाली है, अगर नहीं बना तो संग संग ऐसा नहीं। तो इससे क्या फॉर्म होता है, इससे वो एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट से बिजनेस माइंडसेट में ट्रांसफर होता है। साइकोलॉजिकल डिफरेंस है, छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट से बिजनेस माइंडसेट में लाना, कि एक महीना सॉलिड हो सकता है, नेक्स्ट महीना नहीं भी हो सकता है, इसको एक्सेप्ट करना अंदर से इज वेरी डिफिकल्ट। कोई मानना ये नहीं चाहते है कि मेरा पापा बिजनेस करते करते नेक्स्ट महीना लॉस कर लिए। वो दोस्त लोग को क्या बताएगा कि पापा का बिजनेस अभी भी अनस्टेबल है। लेकिन ये पॉइंट अगर स्टेबलाइज हो गया कि बिजनेस करने में कभी प्रॉफिट होती है, कभी लॉस भी होता है, तो बच्चे के मन में क्या गड़ा रहेगा कि चलिए कोई बात नहीं, ऐसा हो रहा है, नेक्स्ट महीना मैं पापा को और ज्यादा सपोर्ट करूंगा, पापा का बिजनेस और डबल हो जाएगा। ये फीलिंग भी तो जरूरी है। क्या, जब आप बच्चों को प्रॉपर ट्रीट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल ज्ञान भी दे रहे हैं, उनको खर्चे करने के लिए पॉकेट मनी भी दे रहे हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं गो पापा गो, ऐसा बोलता है कि नहीं, गो मम्मी गो, आपसे ही हो सकता है। आज बहुत सारे फ्लैवियंस जब स्टेज पे उठते हैं ट्रॉफी लेने के लिए, चेक लेने के लिए, उनके बच्चे भी उनके साथ उनको सपोर्ट करने के लिए स्टेज पे उठते हैं। आप लोग देखे हैं हमारे हर एक सेमिनार में, एनुअल सेमिनार पे फैमिली साथ में उठते हैं स्टेज पे। अब आप ही बताइए, क्या ये फैमिली और ज्यादा ग्रो नहीं करने वाला है जब उनका बच्चों का, उनका हस्बैंड का, उनका वाइफ का फुल सपोर्ट है उनके काम के लिए। अरे बुक पिटिए बोलते হবে জোরে আগে যে হ্যাঁ আমি ফ্লাভিয়া করি, আর পরিবারকেও বলাতে হবে যে হ্যাঁ আমি ফ্লাভিয়া করি। তার আগে অবধি কোনো ভরসার জায়গা নেই, জোর গলায় যে কিছু বলতেই পারলো না, সে কি মার্কেটে গিয়ে আমার ব্যাপারে, আমার কোম্পানির ব্যাপারে ভালো কথা বলতে পারবে, राइट। 24 मैसेजेस आ गए हैं, मैं एक बार लास्ट चेक कर लेता हूँ। अनिल सर ने मेंशन किया ईगो हार्ट, ठीक है, बट ईगो को हार्ट में लेना गलत है, राइट सर, वेरी गुड। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इमरजेंसी फंड का पावर। 10 मिनट में इसको आपको प्रॉपर समझने का एकदम प्रॉपर आ जाएगा। इमरजेंसी फंड यानी कुछ पैसे मैं सेव करूंगा ताकि हेल्थ इमरजेंसी हो या फैमिली प्रॉब्लम्स हो या कोई भी डिस्प्यूट हो, ताकि आप उस डिस्प्यूट के लिए प्रिपेयर्ड रहे। आज बहुत सारे समय में जब मेरा हेल्थ डाउन हो गया, एक महीना मैं मार्केट में निकल नहीं पाया और मेरा पैसा बर्बाद हो गया या खत्म हो गया या बिजनेस मैं नहीं कर पाया, तब जाके क्या होता है कि इस पैसे से मैं अपने बिजनेस में इधर री इन्वेस्ट कर सकता हूं। मैं अभी सजेशन नहीं देता हूं, कि मैं कोशिश ऑलवेज करना चाहता हूं कि 3 महीने का इमरजेंसी फंड मिनिमम रहे। 6 महीने का अगर रहता है तो बहुत बेहतर है। जस्ट अ मिनट স্যার, আমি একটু মিটিং এ আছি, আমি একটু পরে ফোন করছি আপনাকে। অল রাইট, ऑल राइट, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो क्या करेंगे, इमरजेंसी फंड के लिए मिनिमम 3 महीना का खर्चा हम लोग साइड करके रखेंगे। अगर फ्लैविया से होता है वेल एंड गुड, अगर फ्लैविया से आप अभी तक बना नहीं पाए, तभी भी जब आप दूसरे प्रोफेशन में हैं वहां से भी कुछ पैसा आप लोग साइड करके एक अलग अकाउंट पे मेंटेन कीजिए। अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके घर में कोई भरोसेमंद इंसान हो, आप उनसे भी स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। ऐसे कई सारे, ऐसे मैं मुझे सिचुएशन देखने को मिला, जैसे एज पर मानिए कोई किसी अपने, एक बहन है, अपने दीदी को बाकी अपना सेविंग का पैसा दे के रख दिया, कि उसको, उसका हैबिट क्या है, अगर मेरे पास पैसा रहेगा मैं खर्चा कर दूंगा। लेकिन ये पैसा अगर आप रखते हैं तो मुझे मालूम है, आपसे मुझे जब मैं पैसा मांगने वाला हूं, आप मुझे मना कर देंगे कि ऐसा नहीं होगा, ये पैसा तुमने सेव करने के लिए मुझे दिया। तो अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है घर में, रिस्क मत लीजिए, लेकिन अगर ट्रस्टवर्दी है तो आप ट्राई कर सकते हैं। रविशंकर सर ने मेंशन किया, हेलो ऑल, सबको नमस्कार। ऑल राइट रविशंकर सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू दिस मीटिंग। अब आते हैं इमरजेंसी फंड्स में। जब ही ये इमरजेंसी फंड आपका स्टोर हो गया, साइड बाय साइड आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस करना चाहिए। एक हो जाएगा टर्म इंश्योरेंस, एक हो जाएगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। इसके बारे में लास्ट मीटिंग में मैंने चर्चा किया था, आई गेस इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप हमारे इंडस्ट्री में आ जाइए।
और हम लोग बहुत बेहतरीन में लाइव सेशन में आपको करके समझाएंगे कि कैसे करके ये चीज हम लोग कर सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं बजट चार्ट टेम्पलेट में। ये चार्ट कोशिश कीजिए अपने टीम तक पहुंचाने का, कि अगर आप लोग चार्ट बना के उनके हाथ में दे देते हैं, तो अगर वो लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो उनके दिमाग में ये स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिमाग में ये स्टोर हो जाएगा। तो 50% यानी 10,000 में से आप एज फॉर एग्जाम्पल 5 साइड करवा दीजिए फैमिली एक्सपेंस के लिए, 30% साइड करवा लीजिए प्रोडक्ट स्टॉक के लिए यानी 3,000, और 2,000 रुपया सेविंग्स एंड प्रोटेक्शन के लिए। ये चार्ट मैं आपको सभी को व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन कोई अगर बाई हैंड या स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 50-30-20 का रेशियो मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे? हर एक एक्सपेंस को हम लोग ट्रैक करेंगे, हर एक एक्सपेंस। ये जो हाउस होल्ड नीड्स के लिए 5,000 हम लोग ने साइड किया, ये 5,000 का पूरा हिसाब आपके पास रहना चाहिए। ग्रोसरी में, वेजिटेबल में कितना खर्चा गया, रेंट कितना गया, समझ में आ रहा है? स्कूल ट्यूशन फीस में एज फॉर एग्जाम्पल इसको ब्रेक डाउन किए हैं। ये जो नंबर्स है, ये नंबर हर एक के लिए डिफरेंट होने वाला है, लेकिन एज फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए कि स्कूल ट्यूशन फीस में इतना जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल में इतना खर्चा हो रहा है, नॉन बिजनेस ट्रांसपोर्ट यानी पर्सनल यातायात में कितना ज्यादा मेरा खर्चा हो रहा है। एक चार्ट इसका बनाएंगे। नेक्स्ट बनाएंगे 30% का, यानी बिजनेस री इन्वेस्टमेंट। जो 3,000 मैंने रीस्टॉक करने के लिए, बिजनेस ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग यूटिलाइज करने वाले थे, इसको हम लोग अलग से एक्सपेंस स्टेटमेंट में मेंशन करेंगे कि 2,000 रुपए का स्टॉक लिए, डेमो सैंपल्स दिखाने के लिए, ऑफर्स के लिए इतना ज्यादा 500 रुपया लिए, मीटिंग ट्रैवल करने के लिए, सेमिनार्स में जाने के लिए, अगर दूसरे स्टेट में विजिट करना है तो उसका एक्सपेंस आप लोग मेंशन कीजिए। करने के बाद 20% पे आएंगे, वो है सेविंग्स एंड सिक्योरिटी। अब कितना परसेंट आपने इमरजेंसी फंड में डाला, कितना आप एफडी आरडी या गोल्ड में डाले, और कितना रुपया आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए जा रहा है, इसका एक ट्रैक हम लोगों को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब फाइनल चार्ट पे आ जाएंगे। फाइनल चार्ट इज क्या है कि डेली इनकम और एक्सपेंस में क्या हो रहा है। जैसे मानिए एज फॉर एग्जांपल, आज अगर आप 2 पेनो फ्रेश बेचते हैं तो एवरेज में आपका अमाउंट क्या आ रहा है कि 660 करके कैप्सूल है, तो 660 करके 1320 आपका अमाउंट आ रहा है। टाइप ऑफ इनकम क्या है? ये इनकम है, एक्सपेंस नहीं। अब ऐसे करके आपको पूरा महीना का या पूरा ये चीज आपको वीकली करना होगा, ये चीज आपको मंथ के एंड पे करना होगा, 31 तारीख को या 1 तारीख को मंथ के स्टार्टिंग में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे करके एक लेजर बना लेंगे। लेजर बना के इस पे डालेंगे कि आज का सेल्स कितना हुआ, आज का रीस्टॉक अमाउंट कितना हुआ। जैसे मानिए डाइबो केयर जूस मैंने 3 रीस्टॉक किया, तो ये क्या बना मेरा? ये मेरा एक्सपेंस बना, इतना पैसा मैंने डीपी रेट में खर्चा किया, अब इसको बेच के मैं प्रॉफिट करने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैवल एक्सपेंस के लिए मेरा 80 रुपया खर्चा हुआ, पर्सनल एक्सपेंस चाय पानी के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए 50 रुपया खर्चा हुआ। पेमेंट कितना रिसीव किए हैं एमआरपी में, यानी सिस्टम के माध्यम से हम लोग कितना एमआरपी में माल बेचे हैं, उसका कितना पैसा बन रहा है। सेविंग्स में कितना पैसा हम लोग ने डिपॉजिट किया। अब नीचे यहाँ पे कैलकुलेशन में देखेंगे कि रिटेल टोटल मेरा कितना हुआ। टोटल इनकम मेरा दिन का 3,320 एज फॉर एग्जाम्पल, 3,320। एक्सपेंस कितना हुआ? ऑलमोस्ट 730 रुपीज, राइट। अब सेविंग्स कितना हुआ? 500 रुपीज। अब आपको कैलकुलेट करने बैठना है कि इस हफ्ते या इस दिन आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया। इतना बेसिक कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। कोई हाथी घोड़ा इसमें नहीं है, कोई एल्जेब्रा नहीं, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं, कोई कैलकुलस नहीं, बस बेसिक मैथ। बिजनेस करने उतरे हैं तो बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन तो हम लोग को करना आना चाहिए कि नहीं। अब आप बताइए कितने जन ये चीज रेगुलरली करते हैं ऑलरेडी? कमेंट पे मेंशन कीजिए वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। कौन अपना डेली हिसाब किताब मेंटेन करते हैं और कौन अपना प्रॉफिट मार्जिन रिकॉर्ड करके रखते हैं, ताकि नेक्स्ट महीना आप ये प्रॉफिट को डबल करवा पाए। कितने जन यहां पे करते हैं? लेट्स सी फ्लैवियंस, लेट्स सी। बहुत सारे लोग करते हैं, एक नो मिला मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी करना स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट एवरीवन इज डूइंग दिस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये करना इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये सिखाना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कमिटमेंट कार्ड। ट्राई कीजिए हर एक ट्रेनिंग सेशन में जब आप नए लोगों के साथ बैठ रहे हैं,
होम मीटिंग कर रहे हैं कि ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं, आई डोंट माइंड, लेकिन आपके पास एक फॉर्मेट ऐसा रहना चाहिए, जैसे मानिए लोगों से आप कमिटमेंट करवा के उन्हीं के हाथ से उनका कमिटमेंट लिखवा दिए। अब ये क्या हो रहा है, ये एक फॉर्मेट है, टेम्पलेट है। क्या है इसमें, अपना नाम, टीम लीडर का नाम, मोबाइल नंबर, ये है डेटा कलेक्शन शीट। ये चीज आप अपने पास रखेंगे। अगर नहीं रखते कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप में डायरेक्टली मैसेज कर लेते हैं, मिस्ड कॉल कर लेते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये करने का फायदा क्या है, ये ऑन ऑन पेपर जब कोई लिखता है, उनका ट्रस्ट लेवल और ज्यादा बिल्ड होता है, और आरो बेसी गुरुत्व होता है, इसको और ज्यादा वो लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये कॉर्पोरेट कल्चर है, इसको मुझे पालन करना होगा। अब आप बताइए, बाकी सब इंडस्ट्री में जब इतना बेहतर सिस्टम्स मेंटेन होते हैं, हर एक चीज के पीछे ट्रैकर लगा रहता है, तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में भी एक सेल्स ट्रैकर रहना चाहिए, एक लीडरशिप ट्रैकर रहना चाहिए, जो लोग देख के समझेंगे कि भैया हम लोग कोई लोकल काम नहीं कर रहे, बल्कि पैन इंडिया जब हम लोग डेवलप कर चुके हैं, हमारे पास एक से एक बेहतर सिस्टम है, एक से एक बेहतर फॉर्मेट है, एक से एक बेहतर प्रेजेंटेशन है। करेक्ट है। एक बार लास्ट मैं चैट चेक करता हूं। ऑल राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कमिटमेंट कार्ड में क्या करवाएंगे, স্যার, इनसे क्या क्या, हाँ यस मैम, স্যার बोलिए। এই আগের যে মানে আপনি চ্যাটটা এই যে এটা দেখালেন যেটা, স্যার এটা কি हाँ আমাদের ওই আই কার্ডের জন্য বলছেন, নাকি আমরা যখন মিটিং এ বসবো কারোর সাথে তখন এটা মেনটেন করতে? এটা একটু রাইট, বুঝতে পারলাম না। মিটিং এ যখন বসবেন তখন আপনারা এই জিনিসগুলো করাবেন। এটা হোম মিটিং भी এটা আচ্ছা, হতে পারে, এটা অফিসে ট্রেনিং মিটিং হতে পারে, এটা আপনি অন্য কোথাও গেলেন ওখানে মিটিং করছেন সেখানেও করুন। মোট কথা ইজ, আচ্ছা, আচ্ছা। আপনি লোকেদেরকে লিখিয়ে লিখিয়ে করান, ওনার টার্গেট ওকে নিজে স্যার। লিখবে, উনি কি করবেন উনি নিজে লিখবেন। আর लोग যখন আচ্ছা, নিজে লিখে নেয়, लोग जब अपना पॉइंट्स खुद लिखते हैं, वहां पे एक सिग्नेचर करते हैं, तब क्या होता है, नेक्स्ट महीना जब आप उनको बताएंगे कि सर ये काम तो, ये वादा तो आपने यहां से करके गया, आप करके गए थे, लेकिन इससे क्या फायदा हुआ, क्या आप अपने लाइफ में ये स्टेप अचीव कर पाए हैं? अगर नहीं कर पाए हैं तो डांटना नहीं है, उनको फिर से समझाएंगे, उनको उनको फिर से मौका ओके देंगे कि सर जी ऐसे करके आपको करना है, ठीक है चलिए ये महीने आप कर नहीं पाए कोई बात नहीं है, लेकिन अब से आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है। अब क्या होता है, একটা মানুষ যখন কেউ লিখে নেয় আর তখন যখন এটা পালন করতে পারে না, মানুষটা কি ফিল করে, গিল্টি ফিল করে। আর একদম স্যার। ম্যাক্সিমাম কাজ কিন্তু যখন মানুষ গিল্টি ফিল করে, তাই জন্য কিন্তু আরো কাজটা ভালো হয়ে যায়। एज फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में घर से मैं प्रॉमिस करके निकला, माँ हमें 90% पाबो ही पाबो, पॉइंट को बढ़िया से समझिएगा, माँ একদম। मुझे 90% मिलना ही है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में आ गया 60%। अरे फर्स्ट तो मेरा वो देख के मुंह लटक जाएगा, करेक्ट है, वो देख के मेरा मुंह लटक जाएगा, फिर गिल्टी लगना शुरू होगा कि घर में जाके मुझे डांट पड़ने वाली है, मार पड़ने वाली है, क्योंकि मैंने फॉल्स प्रॉमिस कर दिया। और फिर अंदर से जब मार या डांट हम लोग सुन लिए हैं, उसके बाद क्या आता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर यानी नेक्स्ट, नेक्स्ट की বলে ওটাকে, স্কুল লাইফ একটা ভুলে গেছি আমি, কলেজ একটা এক্সাম, মনে এক্সাম, পড়ছে। নেক্সট এক্সাম, एग्जाम, এক্সাম, नेक्स्ट एग्जाम, टर्मिनल, राइट, टर्मिनल इज द হুম, वर्ड। नेक्स्ट টার্মিনাল। टर्मिनल में हम लोग হ্যাঁ, और बेहतर कर पाएंगे। तो ये फीलिंग क्या, आप ही बताइए, जब ये चीज स्कूल लेवल में काम करता है, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज एडल्ट के लिए काम नहीं करने वाला है? डेफिनेटली करने वाला একদम है। ये স্যার, सिर्फ একদম बच्चों के একদম। लिए नहीं, ये बल्कि जो सिस्टम फॉलो करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं, राइट। तो उनको क्या ওকে लिखवाएंगे, रेगुलरली उनको अपना गोल अमाउंट लिखवाएंगे, गोल सेटिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे बैठ के एक महीने का आप टारगेट नहीं लेते हैं, तो किस लिए आप बिजनेस ज्वाइन किए हैं, आप मुझे बताइए। अगर टारगेट बेस्ड काम नहीं करना आता है, अगर लोगों को जोड़ने का काम नहीं करना आता है, लोगों को आप कन्विंस नहीं कर पाते हैं, तो आपको इधर ये चीज सीखना पड़ेगा, और वरना लाइन छोड़ के चला जाना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। এই দুটোর বাইরে তো আর কোনো অপশন ইয়েস নেই, স্যার, इधर जानबो ना হলে ইয়েস স্যার, বেরিয়ে ইয়েস যাবে। স্যার। बैठ के तो कोई समय একদম, बर्बाद करने के लिए ইয়েস नहीं आए हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हर স্যার, একদম। महीने उनको आप अपना टारगेट मेंशन करवाइए कि सर आपने इस महीने का क्या टारगेट लिया। अब कोई फेंक के बता देगा कि हाँ मैं 1 लाख का टारगेट लिया, तो 1 लाख के टारगेट पूरा करने के लिए उनको कितना ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा, उनको कितना सेल कराना पड़ेगा, उनको कितना रेफरल लेना पड़ेगा, ये तो आपको पता है। जो आपके सीनियर है, या आप अगर अभी सीनियर बन गए हैं, ये आपको मालूम है ये स्ट्रेटेजी कैसे करके अपने डाउनलाइन को दिया जाता है।
मंथ वाइज मंथ, प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट ब्रेक डाउन करके उनको बताइए कि अगर आप इतना माल बेचते हैं या इतना लोगों को ज्वाइन करवा के खरीदारी करवाते हैं, आपका ऑटोमेटिक ये महीने में इससे कई गुना ज्यादा पैसा आने का चांस है। और अगर ये एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 लाख मेंशन किया हूं, तो मैं उसको शो क्या करूंगा कि आप 1 लाख नहीं बल्कि यहां से 2 लाख का काम कर सकते हैं। तो उसको क्या होगा, वो उसका भूख और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो और ज्यादा मेहनत करने के लिए राजी हो जाएंगे। ये सिर्फ हमारे समझाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या करेंगे, इनको कमिट करवाएंगे, कमिटमेंट कार्ड এখানে কি দিয়েছে ভলিউম কম। অলরাইট, আপনার নেটটা একটু চেক করুন ম্যাম, আই গেস ভলিউম ঠিক আছে, ভলিউম ক্লিয়ার है सभी के लिए? यस सर, यस सर, यस सर, यस অলরাইট, सर। নো প্রবলেম। यस सर। ঠিক আছে ম্যাম, অলরাইট, মাইকটা মিউট করে यस নিন, सर, थैंक यू सो यस मच। सर। अब आते हैं यहाँ पे सेविंग्स क्या क्या करवाएंगे, इनको कमिट करवाएंगे कि ये मेरा गोल टारगेट है एंड आई कमिट टू, क्या करेंगे सर जी आपसे, ये वादा कर रहे हैं आपके सामने बैठ के कि 20% महीना मैं सेव करूंगा, बिजनेस का पैसा और पर्सनल खर्चा अलग करूंगा, स्टॉक पे मैं री इन्वेस्ट करूंगा, ट्रेनिंग सेमिनार्स पे मैं री इन्वेस्ट करूंगा ताकि मैं खुद डेवलप हो पाऊं। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग अ डेली एक्सपेंस इनकम शीट, इनकम एक्सपेंस शीट मेंटेन करना है ताकि अपना जो पैसा खर्चा हो रहा है उसका मैं ट्रैक रख पाऊं कि मैं सही डायरेक्शन में पैसा खर्चा कर रहा हूं कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइडिंग अननेसेसरी लोन्स एंड क्रेडिट ट्रैप, यानी बेफिजूल का मैं क्रेडिट कार्ड का खर्चा, ईएमआई, लोन वगैरह अननेसेसरीली यूटिलाइज नहीं करूंगा। नेक्स्ट इज 6 महीने का इमरजेंसी फंड मैं बिल्ड करूंगा ताकि कोई भी दिक्कत आए मेरे बिजनेस करने में, मैं उससे फाइट कर पाऊं। नेक्स्ट इज फैमिली को इन्वॉल्व करूंगा, उनसे बजटिंग के बारे में बातचीत करूंगा, फाइनेंस को कैसे करके मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। बच्चों को सिखाऊंगा कि अगर फ्लैविया के साथ आप जुड़ते हैं तो ये ट्रेनिंग भी मुझे मिलता है, और अगर फ्लैविया के बारे में नहीं सोचना है कोई बात नहीं, तुम फ्लैविया को नहीं मानते हो, मुझे तो मानते हो, मेरा बात पे तो आपको विश्वास है, तो बस इतना सा फॉलो करो। अगर सच में ग्रो करना चाहते हो तो बाकी बाजे संगति ছেড়ে তুমি আমার সঙ্গতিতে এসো। बहुत साल पहले अगर मेरे फादर मुझे ये चीज नहीं कहते तो मैं भी शायद नेगेटिव हो सकता था, लेकिन आप सभी का भरोसा, आप सभी का विश्वास ऐसा स्ट्रांग मुझे मिला कि मैं ऑलवेज पॉजिटिव के साइड में फोकस किए। तो थैंक यू सो मच फ्लैवियंस, आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों के इंस्पिरेशन की वजह से ही आज हम लोग इतना बेहतर काम कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हेल्पिंग माई डाउनलाइन टू लर्न दिस हैबिट्स। क्या करेंगे, वादा ये भी करेंगे, आपके सामने बैठ के मैं वादा कर रहा हूं कि मैं ये चीज अपने डाउनलाइन को भी सिखाऊंगा। करेक्ट है? एक बार चैट पे एक मेंशन आ गया है, क्या है, यस, ऑलराइट। नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में उनको ये चीज लिखवाएंगे, ये चीज भी लिखवाएंगे। वो पेज उसको कहेंगे कि पेज उलट लीजिए और यहाँ पे अब प्रॉमिस स्टेटमेंट लिखिए। क्या लिखेंगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, क्या, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने हर महीने की आय का समझदारी से इस्तेमाल करूंगा। पॉइंट करेक्ट है, पैसा कमाना मेरा लक्ष्य है पर उसे संभालना मेरा कर्तव्य है। ये सब लिखवाइए, ये सब बुलवाइए, जोर आवाज से बुलवाइए, जैसे करके वी विल रॉक यू पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये वादा करवाइए अपने डाउनलाइन से। आज जब भी हम लोग नेशनल एंथम गाते हैं या प्लेज को बोलते हैं, ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये तो हम लोग को याद हो गया है ना। अब वही वही प्रोसीड्योर से अपने डाउनलाइन को भी ये चीज सिखा देंगे कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं, अब कोशिश कीजिएगा, कोई हाथ उठा के कर सकते हैं, कोई ऐसे करके कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अपने टीम में एक स्लोगन बिल्ड करवाएंगे कमिटमेंट का, कमिटमेंट स्लोगन रहना चाहिए। इससे क्या होता है, टीम का बॉन्डिंग और बेहतर होता है। करेक्ट है? मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने हर महीने की आय का समझदारी से इस्तेमाल करूंगा, पैसा कमाना मेरा लक्ष्य है पर उसे संभालना मेरा कर्तव्य है। मैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाते हुए फ्लैविया आयुर्वेदा के माध्यम से अपनी और मेरी टीम की जिंदगी बदलूंगा। यहां पे डेट डलवा दीजिए, सिग्नेचर करवा दीजिए।
और खुद भी सिग्नेचर कर दीजिए कि आप अगर वहां पे प्रेजेंट भी ना हो, उनके पास वो कमिटमेंट कार्ड होना चाहिए। उनको देख के अगर वो काम नहीं करते हैं, शर्म आनी चाहिए कि मैं ये वादा करके गया था आपके साथ, लेकिन मैं फुलफिल नहीं कर पाया। तब आपके पास क्या हुआ, एज अ सीनियर आपको एक हायर ग्राउंड मिला। आप उनको बोल सकते हैं कि चलिए बाबा सोना এদিকে এসো, কাজ হয়নি কোনো ব্যাপার নেই, এবার কাজ হবে, কোথায় যাবে আর লোকেরা। राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए, कल जाएंगे। 9:10 क्रॉस कर गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ पॉइंट्स और बाकी है, और कुछ नए पॉइंट्स नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग रखेंगे आप सभी के लिए। फिलहाल के लिए सभी को एक रिक्वेस्ट मैं करने वाला हूं। रेडी है मेरे ये रिक्वेस्ट रखने के लिए? अगर रेडी है एक बार स्क्रीन पे लाइक दिखा दीजिए। जो जो व्यक्ति आज एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार ये मीटिंग को मिनिमाइज कीजिए। गूगल मैप में जाइए, गूगल मैप में जाके वहां पे फ्लैबिया आयुर्वेदा सर्च कीजिए। मैं करके आपको दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट, मैं करके आपको दिखाता हूं। हर चीज का हमारे पास डेमो जरूर रहता है, तो मैं करके ही दिखा देता हूं सभी को। ऑल राइट, वापस आते हैं यहाँ पे। एज फॉर एग्जाम्पल, गूगल मैप्स पे हम लोग जाएंगे। फोन पे जाने के बाद मैप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे फ्लैविया आयुर्वेदा। क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च पे जाके लिखेंगे फ्लैविया आयुर्वेदा। यहाँ पे हमारा 3 एड्रेस मिलने वाला है। एक है हेड ऑफिस का एड्रेस, एक है फैक्ट्री का एड्रेस, और एक है आसाम ब्रांच का एड्रेस। आपको क्या करना है, इन तीनों में जाके अगर मीटिंग अच्छा लगता है लेडीज एंड जेंटलमैन, एक रिव्यू जरूर डालना है। याद रहे, जो रिव्यू पहले डाल दिए हैं उनका रिव्यू और नहीं लिया जा सकता, क्योंकि रिव्यू देने का मौका एक बार मिलता है। तो क्या करेंगे, एक আগের एड्रेस को দিন আমি सिलेक्ट এরকম करेंगे। রিভিউ পারিনি করতে। করতে পারেননি, কোনো অসুবিধা নেই। নেক্সট টাইম ম্যাম আপনি অফিসে আসুন, আমি পার্সোনালি আপনাকে দেখাবো রিভিউ কিভাবে দিতে হয়। ঠিক আছে, আজকে গুগলটা ট্রাই করে দেখুন। গুগলে গিয়ে ফ্ল্যাবিয়া আয়ুর্বেদা লিখবো, লিখে নিচে যাব। আজকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন 4.7 रेटिंग আমরা কিন্তু ফ্যাক্টরির জন্য পেয়ে রেখেছি। अब क्या करना है, यहाँ पे जाके देखिए, नीचे जब ही जाएंगे यहाँ पे दिखेगा मुझे राइट अ रिव्यू। अब वहां पे जाके आप मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके पास कोई भी फोटो हो, अपने टीम के साथ, अपने सीनियर के साथ कोई भी फोटो हो, आप अपना एक फोटो लीजिए और वहां पे जाके डाल दीजिए कि लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज अ गुड कंपनी, मैं इसके साथ बहुत लॉन्ग टर्म से काम कर रहा हूं। और ऐसा कुछ एक प्रॉपर पॉजिटिव रिव्यू आप अपना यहाँ पे डाल दीजिए। आप ये चीज फैक्ट्री के लिए भी कर सकते हैं, हेड ऑफिस के लिए कर सकते हैं, एंड आसाम ब्रांच के लिए भी कर सकते हैं, जो आज यहाँ पे आसाम ब्रांच से प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं एक बार हेड ऑफिस का दिखा देता हूँ। हेड ऑफिस में भी हमारा 4.8% का रेटिंग है। यहाँ पे भी सेम वे इज कि यहाँ पे जाके राइट अ रिव्यू में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एज फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे करके लोग डाले हैं। बेस्ट कंपनी एंड मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स क्वालिटी क्वांटिटी आर वेरी गुड, गुड मैनेजमेंट। तो ऐसा कुछ पॉजिटिव रिव्यू आप लोग को रिक्वेस्ट रहेगा कि मीटिंग के अंत आप लोग ये एक काइंडली, एक अगर सच में आपको बढ़िया लग रहा है ये प्रोग्राम, तो एक रिव्यू जरूर डाल दीजिए। थैंक यू सो मच प्लेबियंस। आज का मीटिंग इतना ही हम लोग रखते हैं। अब आप बताइए कैसा लगा प्रोग्राम। খুব ভালো। थैंक यू सो খুব मच। সুন্দর। আচ্ছা লাগা স্যার। ভেরি নাইস স্যার, খুব ভালো ऑलराइट হয়েছে স্যার, খুব ভালো ভালো। লেগেছে খুব স্যার। ভালো। ऑलराइट খুব मैम, ভালো। थैंक यू सो খুব मच। ভালো হয়েছে স্যার। খুব ভালো ए के হয়েছে सिंह স্যার। सर, आपका খুব आवाज খুব बहुत ভালো। दिनों से খুব ভালো मुझे হয়েছে স্যার। सुनाई খুব नहीं दे খুব रही है। ভালো आप হয়েছে। খুব अनम्यूट ভালো कीजिए হয়েছে स्যার। और शब्द बताइए हेलो सर, सभी के साथ। यस सर। ऑनलाइन क्लास पर बहुत ভালো बहुत লাগছে अच्छा बहुत স্যার। बहुत अच्छा रहा बढ़िया। सर। খুব हेलो ভালো सर। হয়েছে স্যার। यस हेलो सर। থ্যাংক গুড ইউ নাইট স্যার। স্যার। हेलो सर, ऑलराइट, सुनाई दे रहा है गुड सर? नाइट मैम। यस, बोलिए गुड सर। बहुत अच्छा गुड लगा। आप जो फंड बताए, नेटवर्क जो शुरू में समझाया जाता है ना, एक एक लगता करके है। बोलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, एक एक करके बोलिए। गुड 5 मिनट और समय लेंगे, एक हेलो एक करके बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा है। मैं एक बार सभी को म्यूट करता हूँ, जस्ट अ मिनट। सभी को एक बार म्यूट करता हूँ, और ए के सिंह सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अनम्यूट कीजिए और 2 शब्द हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच सर। স্যার মিটিং ফ্লাভিয়া, গুড নাইট স্যার। ऑल राइट, गुड नाइट मैम। জয় হোক ফ্লাভিয়া। জয় হোক ফ্লাভিয়া। अरे यार।
অলরাইট नहीं रहा है। ফ্লাভিয়ান্স কি বন্ধ করে দিয়েছো? हेलो, सुनाई दे रहा है सभी को? जस्ट अ मिनट, नेट का थोड़ा समस्या हो गया। কেটে তো গেছে, এটা তো গেছে। না ঠিক আছে, ঠিক আছে, হয়ে গেছে, আমি ম্যানেজ করে নিচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে জান, কোনো অসুবিধা নেই। हेलो, आवाज क्लियर आ रहा है सब लोग थक लेडीज एंड जेंटलमैन? सब लोग थक गए हैं सर। ऑलराइट, नेट का थोड़ा समस्या हो गया था, तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार सभी को हेलो मैं सर। रिक्वेस्ट करूंगा। यस सर यस सर, बोलिए। कह रहे हैं कि आपने एक शुरू में उदाहरण दिए थे कि आज 1 रुपया जमा कीजिए, कल 2 रुपया, 4 रुपया, 8 रुपया। हम लोग शुरू में मैंने नेटवर्क में कहा जाता है कि आप जो है जैसे माचिस का खोखा आता है ना, माचिस जो आता है डब्बा, उसका एक। हेलो, सुनाई दे रहा है सर? यस सर, सुनाई दे रहा है। हम लोग उदाहरण देते हैं कि नेटवर्क का ताकत क्या है। नेटवर्क का ताकत यह है कि आज मुझे 1 तीली दीजिए, माचिस का 1 तीली दीजिए, सर कल एक 2 काम करते हैं, दीजिए। आपका आवाज अभी क्लियर नहीं है। सभी लोग जय हो फ्लैविया बोलने के लिए वेट कर रहे हैं, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप पे आते हैं। ठीक है सर, तो सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अनम्यूट कर लीजिए और 3, 2, 1 बड़ा जय हो फ्लैविया एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीक 8 बजे शार्प। थैंक यू सो मच। अब बैक टू म्यूट। AK सिंह सर, आपको रिक्वेस्ट करता हूं फिर से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच सर। हाँ सर, हम लोग कहते हैं कि नेटवर्क का ताकत देखने के लिए कि नेटवर्क क्या है, वो फ्लाविया का हो या जो भी नेटवर्क है, आज लोग कैसे नेटवर्क में कमाते हैं। आज उदाहरण में देते हैं कि आज माचिस का 1 तीली दीजिए, कल 2 दीजिए, 4 दीजिए, 8 दीजिए, 16 दीजिए, गुना करके देते जाइए, 30 दिन तक दीजिए। 31वां दिन आप गोपालगंज का, जैसे गोपालगंज बिहार का रहने वाला हूँ, तो गोपालगंज का जो भी मकान पसंद हो वो 31वां दिन खरीद कर दे देंगे। अगर इससे भी खुश नहीं है तो 4 व्हीलर जो पसंद करेंगे वो भी हम दे देंगे। ठीक है, क्या बात है सर। ये ताकत एक माचिस की तिल्ली का है, तो 1 रुपया का ताकत क्या होगा? जी सर, डेफिनेटली, वेरी गुड। 1 रुपया के माचिस का तिल्ली का एक आज कल 2 गुना भाग करेंगे, जितने भी 75 73 लोग हैं। यस सर। 1 2 4 8 16 इस तरह से करके गुना करके जो आप कहे हैं शुरू में, 30 दिन तक दीजिए। 31वां दिन गोपालगंज का जो भी मकान पसंद हो वो खरीद कर देंगे, प्लस एक 4 व्हीलर जो भी आपका वो पसंद हो वो देंगे। ये ताकत है एक माचिस का तिल्ली का, तो 1 रुपया का क्या होगा? कैलकुलेटर में सर डिजिट खत्म हो जाता है, जब इसकी मल्टीप्लाई होती है ना तो कैलकुलेटर का डिजिट खत्म हो जाता है, फिर नहीं लेता है। राइट सर, एरर आ जाता है। ठीक है सर। अनिल सर, और कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा सर प्रोग्राम, बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ, समझे। तो एक दो चीजें मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आप सेविंग में जब बात कर रहे थे। ऐसे तो मैं ज्यादा प्रोग्राम रास्ते में लिया क्योंकि एक मीटिंग में था और रास्ते में वीडियो ऑफ करके ले रहा था। तो वो जो 50 30 या 20 ये जो चीज बताने सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अगले 3 महीने से यहाँ पे हमारे जो भी मेरे टीम मेंबर होंगे उनको ये चीज पता है कि वे चीज के ऊपर मैं सब लोगों को काम करा रहा हूँ उनको। लेकिन इस सेविंग के ऊपर नहीं, उनको मैं बोला हूँ कि देखिए अगर आपको बिजनेस करना है तो टारगेट लेस आदमी बिजनेस नहीं करता है, आपको एक टारगेट लेना होगा। तो मान लीजिए कि आप सेल्फ टारगेट लेते हैं कि मुझे इस महीने में 30,000 बिजनेस करना है या 10,000 जो भी करना है, उसकी डिवाइड कर लीजिए 532 मतलब 50 30 20। अब अगले 10 दिन के अंदर आपको 50% करना है, उसके बाद वाला जो 10 दिन है उसमें 30 करना और लास्ट का 20। अगर इस बेसिस पर जिसने भी जो भी सर कर रहा है ना, इसमें बेनिफिट क्या हो रहा है कि जो टारगेट है तो सक्सेस हो ही रहा है, लास्ट का जो 10 डेज जो बच रहा है ना उसमें जो 20% करना है उससे एबव चला जा रहा है जो इसके ऊपर काम कर रहा है। क्योंकि हो सकता है कोई अच्छा ऑफर कंपनी दे दे, 1:1 में अच्छे प्रोडक्ट आ जाए, तो उनकी जो 20% की जो ताकत है ना, 20% का जो टारगेट है ना वो एबव चला जाता है। तो इस रेशियो के ऊपर सर हमारे टीम वाले हैं, सुन भी रहे होंगे कि हम लोग काम करवा रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ लोग सक्सेस हो रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जरूरी है कि मेहनत करें सब लोग सक्सेस हो, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन होना तो जरूर है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। बोलिए, और कौन कुछ कहने वाले थे लेकिन आवाज कट गया। बोलबो सर?
ইয়েস, বলুন। আমাদের ম্যাপসে যে গুগল ম্যাপসে যেটা আপনি দেখালেন যে রিভিউটা দেওয়ার জন্য, তো সেটা হ্যাঁ, অলরেডি ডান। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো ওয়েলকাম স্যার। জরুর সবাইকে আমি বলছি, একটা রিকোয়েস্ট, যদি রিভিউ না দিয়ে থাকেন কাইন্ডলি একবার গুগল ম্যাপে গিয়ে সবাই রিভিউ দিয়ে দেবেন। थैंक यू सो मच। আর কেউ কিছু বলতে চান? हेलो कोई सर। और कुछ कहना चाहते हैं? यस सर मैम। तो आज का मीटिंग से जो माने माने मेरे पास जो बेस्ट पॉइंट लगा, जब वीडियो दिखाया, जैसे कि पैसा अर्न करने के लिए माने मेहनत चाहिए, बट वो पैसा लॉन्ग लास्टिंग बचा के रखने के लिए विनम्रता चाहिए। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। यस मैम, ऑसम यस। सर आज का मीटिंग था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ऑलराइट। और कोई एनीवन एल्स प्लीज? कोई और कुछ कहना चाहेंगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर आवाज आ रही है? यस, आ रही। सर आज का मीटिंग तो हर बार का तरह एक्सीलेंट था, बहुत ही अच्छा लगा। और हर एक मीटिंग में कुछ कुछ ऐसी बेसिक चीजें रहती है जो हम लोगों को अंदर से मोटिवेट करती है। तो आपका मीटिंग से मैं बहुत कुछ सीख कर फील्ड में जाकर काम भी करती हूँ, उस पर सक्सेस भी हो रही हूँ। तो आज का ऑल ओवर मीटिंग में तो बहुत सारे पॉइंट आपने बहुत अच्छे अच्छे बताए थे, वीडियो के माध्यम से, अपने बातों के माध्यम से। बट यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा जो पॉइंट लगा, सेविंग। जो हम यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग जो करते हैं, एसेट्स हम लोग कितना जमा कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो हम अपने बच्चों को सिखाए, ताकि वो लोग हमें देखकर उस बिजनेस को आगे बढ़ाए। कैसे हम लोग पैसे को सेविंग करते हैं और पैसे से ही पैसे को किस तरह से कमाते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच बोलिए तो सर, मेरा बेटा जब से हुआ है, जब से वो होश संभाला है, तब से लेकर आज तक मैं उसे यही चीज सिखाते हुई आई हूँ। और मेरा बेटा अभी 12+ है, और इस उम्र में भी वो अपने मम्मी पापा का फुल सपोर्ट करता है, वो एसेट बचाता है और एसेट बचा को फुल सपोर्ट करता है। प्लस फ्लाविया का बिजनेस में भी मेरा हेल्प करता है, मेरे हस्बैंड मेरे बेटे दोनों ही हेल्प करते हैं। और सबसे खुशी का बात यह है सर कि उसे मैं अपने संग में लेकर हर मीटिंग हो या ऑफिशियल मीटिंग हो, कहीं भी हो, उसे मैं लेकर जाती हूँ। तो वो मुझसे बहुत कुछ सीखा है, देखा है। तो देखने के बाद उसका तरफ से वो खुद एक होम मीटिंग रखा था, जिसे मैं राखी पूर्णिमा का पहले होम मीटिंग में गई भी थी, होम मीटिंग करके भी आई और उसे फेसबुक पर भी अपलोड की थी। तो थैंक्स गौरिक सर आपको और फ्लाविया को, और मेरा जो फैमिली सपोर्ट यहाँ से हमको मिल रहा है, मेरे फैमिली को। सो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कोई और कुछ कहेंगे प्लीज? लास्ट कॉल, अभी इसके बाद हम लोग मीटिंग एंड करने वाले हैं, तो समय बहुत कम है। कोई अगर कुछ और शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। और मीटिंग के बाद जरूर से आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेजिए कि आई नीड द मटेरियल सर, बस डाल दीजिए ये वीडियो एंड जितना तक आज का कोर्स कंप्लीट हुआ है इसका डिटेल्स मैं आपके व्हाट्सएप में भेज दूंगा। ऑलराइट, सोमनाथ सर आपने कुछ थैंक यू वेरी बोलना? मच। रविशंकर सर, यस। सबको मेरा आजादी का दिन का मुबारक हो। यस सर। रविशंकर सर, आई गेस आपका नेट का थोड़ा इशू हो रहा है अभी। मैं चाहूंगा कोई और अगर कुछ। यस सर, यस, बोलिए। माइक्रोफोन सर आपका कैमरा थोड़ा उल्टा हो गया है कैमरा, सर आप अपने तरफ थोड़ा कैमरा घुमा लीजिए। सभी को दिखा दीजिए कि साउथ इंडिया से भी हमारा एक बेहतरीन लीडर आज यहाँ पे प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच सर। सर जी का एज अप्रोक्सीमेटली 71 के करीब है, और सर अभी भी तंदुरुस्त है और बेहतर वे में काम कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ सभी लोग एक बार सर को देख ही ले। ऑल राइट सर। नेक्स्ट मीटिंग आई विल बी प्रॉपर। नेक्स्ट मीटिंग, ओके सर, नो प्रॉब्लम, फुल सपोर्ट। यस शंभुनाथ सर, आप कुछ कह रहे होंगे? चलिए, शंभुनाथ सर भी नहीं सुन पा रहे हैं। कोई और, एनीवन एल्स?
लास्ट, अभी लास्ट एक राउंड, इसके बाद खत्म होने वाला है। एनीवन एल्स? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फ्लैवियंस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक 8 बजे शार्प। एकदम सर, ऑलराइट, অসাধারণ অসাধারণ। थैंक यू सो मच थैंक मैम, यू सर। हैव अ सेफ नाइट। ভালো হয়েছে মিটিং। जय हिंद एंड जय हो फ्लैविया। यस मैम, जय प्लीज। हिंद, जय हो फ्लाविया। जय स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या जय फ्लाविया, गुड नाइट। जय हो फ्लाविया। जय हो फ्लाविया। गुड नाइट सर। नाइट सर। भारत भी महान है, नाइट मैम। फ्लाविया भी महान है। जय हो फ्लाविया। जय हो फ्लैविया। हैप्पी जय हो फ्लाविया। जय हो फ्लाविया सर। जय हो फ्लैविया। गुड नाइट सर। गुड यस नाइट सर। सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट। थैंक यू सो मच। जय फ्लेविया। थैंक यू सो मच।